Good morning, students. Hope you all are very well. Today we are going to revise our first chapter of history, that is what, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. What is history? History is the study of the past, specifically the people's, societies, events and problems of the past as well as our attempts to understand them. It is a pursuit common to all human societies. What is history? What do you think? History वो है जिससे हम इतिहास के उस समय के बारे में जानते हैं जिस समय बहुत ही ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा डेवलप नहीं था. वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कैसी कृषि करते थे, कैसे पशुपालन करते थे, क्या करते थे, उनकी बारे में जानकारी हमें हिस्ट्री के द्वारा ही मिलती है. हिस्ट्री हमारी हेल्प करता है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकें. Why do we study history? हिस्ट्री हम क्यों पढ़े, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट, टू अंडरस्टैंड the world around us. We have to know about our past, because जिससे हम अपने आज जो हम जी रहे हैं, अगर हम पास्ट के बारे में समझ जाएंगे तभी हम अपने आज को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, और भी ज्यादा अच्छे से जी सकते हैं. हम उनकी स्टडी, अगर हम उनके बारे में नहीं जानेंगे कि इतिहास क्या था, कैसे लोग रहते थे, तो इससे हम अपने आगे के जीवन को और ज्यादा सफल या अच्छा सा नहीं बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट, यू स्टडीड अबाउट इज दिस लेसन इन योर प्रीवियस क्लासेस. इट्स ओनली योर रिवीजन. ओके, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. हिस्टोरियन डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 periods, 3 time periods: prehistory, protohistory and history. Who is historian? Historian means a person. Historian is a person who studied and write about our past. Okay students, do you understand who is historian? Historian is a person who studies and write about the past. History is divided into 3 periods: prehistory, protohistory and history. Prehistory is the period when written had no invention and there are no written records of that period. In this period, there is no written material are available. Our knowledge of this period is totally depend on the finding of archaeologists. In this period, we only depend on archaeologists. मतलब कि ये जो पीरियड था, इस पे रिटेन का कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ था. हम लोग आर्कोलॉजिस्ट पे डिपेंड थे. वो जो भी चीजें डिग करते थे, जो भी चीजें पृथ्वी से पाते थे, जो पास्ट के द्वारा चीजें छोड़ दी गई थी, उनके थ्रू हम इस टाइम पीरियड्स के बारे में जानते हैं. नाउ वी कम इन नेक्स्ट वन, प्रोटो हिस्ट्री. This period is the period between prehistory and history, from which we have a few written records. Our knowledge of this period is based on archaeological findings. An example of this period is the Indus Valley Civilization. इस period में कुछ written material हमें प्राप्त हुए हैं. सबसे अच्छा इसका example है Indus Valley की जो सभ्यता थी, वो इसका सबसे अच्छा example है. Now history. That refers to the time period after writing was invented. In this period, writing was invented. We can trace the history of any events from the written records. Okay, early writings were on the stone, rock, pillars, bark of birch tree and clay tables. इस टाइम में हमें written material प्राप्त थे, बट कागज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सिर्फ राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था. वो लोग किस पे लिखते थे? सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों पे, रॉक पे, पिलर्स पे, बार्क ऑफ बर्च ट्री. एक बर्च ट्री होती है, उसकी मोटी मोटी स्टेम्स को निकाल के उस पे वो लोग राइटिंग करते थे. पत्थरों पे, जमीन पे, दीवालों पे, ऐसी जगहों पे लिखते थे. मेनी ऑफ देम हैव destroy, yet we have enough record to write the history.
कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बट जो भी हमें प्राप्त हुए हैं उनके थ्रू हम उस समय की सभ्यता के बारे में जानते हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. History is divided into 3 frames. Date in history. Now we come in next point, date in history. Date in history are explained by 2 terms, BC and AD. What is BC and what is AD? BC refers to before Christ and AC refers to and AD refer to Anno Domini. Do you understand, student? Do you understand? BC इंग्लिश में BC का तात्पर्य BC से मीन्स है बिफोर क्राइस्ट, ईशा पूर्व होता है, जिसे हम कहते हैं ईशा पूर्व. एंड AD को हम कहते हैं एनो डोमिनी. द आर्कोलॉजिस्ट फाइंड द थिंग्स बाय डिगिंग द ग्राउंड्स. They date the object by using carbon 14 dating. Means उनको जो ये डेट थी BC एंड AD. BC मीन्स जब क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था और AD मीन्स एनियो डोमिनी. एंड जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो थिंग्स उनको डिग करके मिलती थी, उनका वो पता डेट के थ्रू एक कार्बन 14 से उनको एग्जैक्ट डेट का पता चलता था वो किस टाइम पीरियड्स का है, किस मतलब प्री हिस्ट्री का है, प्रो हिस्ट्री का है, प्रोटो हिस्ट्री का है या फिर हिस्ट्री की पीरियड का है. ओके स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेट इन हिस्ट्री? नाउ these are some important questions. Do it in your rough copy. Okay, what does BC stand for? I have tell you BC stand for before Christ. Okay students, next question, what does AD stand for? AD stand for Anno Domini. Next question, what is history? History is the study of man past. Thank you. Learn this important question. Okay students, thank you.